Okay, G, let's talk. Let's revise again the isomers of butane. There are basically the two isomers of butane. One of them is the N-butane, and the other one is the isobutane. First one is the N-butane, another one is the isobutane. Side by side करके हम इन दोनों को ही देख लेते हैं. For first isomer, both have the similar molecular formula. Why we are calling them isomers? Because they have the similar molecular formula but different structure formula. Molecular formula for both of them is molecular formula is C4H10 एंड अगेन यहाँ पर भी molecular formula जो है वो है C4H10. For N-butane, what are you going to do? That first of all you are going to draw a straight chain structure. This is your straight chain structure, and then you are going to satisfy the valency of each carbon atom with by using the hydrogen atom. How that आपने हर कार्बन एटम की हाइड्रोजन एटम्स के साथ एक वैलेंसी जो है वो सेटिस्फाई करनी है. पीछे मैंने अभी सारा आपको यही बताया है कि हाउ यू आर गोइंग टू डू दैट. सो दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू satisfy the valency of each carbon atom in the structure of N-butane. Now what are you going to do? That this is the structure formula. Now you are going to write the condensed structure formula. Condensed structure formula कैसे लिखेंगे? Again आप एक straight chain बनाएं कार्बन एटम की, और उसके बाद हाइड्रोजन एटम जितने भी आपने यूज़ किए हैं उनको कंडेंस्ड फॉर्म में इसके साथ लिखते जाएं. फर्स्ट कार्बन एटम के साथ 3 हाइड्रोजन थे, सेकंड के साथ 2 हाइड्रोजन हैं, थर्ड के साथ भी 2 हैं, एंड लास्ट वन के साथ भी आपके पास 3 हाइड्रोजन जो है वो present हैं. So this is the condensed structure formula of N-butane, and now you are going to name it. First you are going to write small n, then a small dash, and capital Butane. And why this is N-butane? N for normal, but for 4 carbon atoms, and A for ane for a single bond that is existing between each carbon atom. So this is the structure of N-butane. This is the structure formula, this is a molecular formula, this is a structure formula, and this is the condensed structure formula. मैं हेडिंग भी दे देती हूँ सारों के साथ साथ. मोलिकुलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, एंड नंबर थर्ड थिंग इज द कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फार्मूला. ठीक है. एंड लास्ट वन इज द नेम of the compound that you have made. So this is how you are going to draw the structure of an N-butane. अब इसी का हमने आइसोमर बनाना है. कैसे बनाना है? हम पहले स्ट्रेट चेन के साथ बात कर रहे थे, अब हमने इसी चेन की ब्रांचिंग कर देनी है. ब्रांचिंग के लिए मैंने आपको बताया है कि यू आर गोइंग टू ब्रांच दैट कार्बन एटम टू दैट पोजीशन सच दैट आपकी एक कंटिन्यूटी ख़त्म हो जाए, आपकी डिसकंटिन्यूटी आ जाए आपके स्ट्रक्चर के अंदर. उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? मॉलिक्यूलर फार्मूला हमने लिख दिया. नेक्स्ट हम क्या करेंगे? स्ट्रक्चर फार्मूला लिखेंगे. स्ट्रक्चर फार्मूला लिखने के लिए हम जो कार्बन एटम N-butane में एक ऐसा था लास्ट पोजीशन पे, उसको हम सेंट्रल पोजीशन पे ले गए. सेंट्रल पोजीशन पे ले गए तो कैसे आपका स्ट्रक्चर बन जाता है? फर्स्ट वी आर गोइंग टू अटैच द 3 कार्बन एटम्स टुगेदर. सिंगल बॉन्ड ही है इन तीनों के बीच में, 3 कार्बन एटम्स, एंड द लास्ट वन इसको उठाकर हम सेकंड पोजीशन पर ले गए, तो यह आपका आ गया ब्रांच के अंदर एक टी लाइक स्ट्रक्चर बन गया. नाउ यू आर गोइंग टू सेटिस्फाई द वैलेंसी ऑफ ईच कार्बन एटम यूजिंग द हाइड्रोजन एटम. At first carbon atom you need 3 hydrogen atoms so that it can satisfy its 4 valencies 1, 2, 3 and 4, because it is already forming a bond with the second carbon atom. Second carbon atom needs only 1 hydrogen atom because it is in bonding with 3 other carbon atoms 1, 2, 3. Last third carbon atom needs 3 hydrogen atoms to satisfy its 4 valencies, and this branched carbon atom also needs 3 hydrogen atoms so that it can undergo satisfy its valency. Now you are going to write the condensed structure formula. For that condensed structure formula आप जब लिखेंगे तो आपने इसमें क्या करना है? सबसे पहले आप लिखेंगे जी स्ट्रेट चेन अगेन, ब्रांच चेन को अगेन लिखेंगे, एंड देन यू आर गोइंग टू राइट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द कंडेंस्ड फॉर्म. फर्स्ट कार्बन एटम के साथ 3 हाइड्रोजन थे, सेकंड वाले के साथ सिर्फ 1 हाइड्रोजन है, थर्ड वाले के साथ अगेन आपके 3 हैं, एंड जो नीचे फोर्थ वन आपने अटैच किया है इसके साथ भी आपके 3 हाइड्रोजन जो हैं ये अटैच हैं. सो दिस इज़ द कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फार्मूला. एंड लास्ट थिंग आप आ जाएं इसके नेम के ऊपर, तो नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज़ द आइसोब्यूटेन. आइसो स्टैंड्स फॉर ब्रांच एंड ब्यूटेन अगेन ब्यूटेन 4 कार्बन एटम्स हैं और एन ही है, सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है कार्बन टू कार्बन एटम. सो how are we saying that N-butane and isobutane are isomers of each other? हम कैसे कह रहे हैं कि ये दोनों isomers है? These two structures are definitely isomers of each other. Isomers of each other. Why? Because they have the same molecular formula,
बिकॉज दे हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला। लेकिन इनके स्ट्रक्चर फार्मूला की तरफ जब हम आ जाते हैं तो दोनों का स्ट्रक्चर फार्मूला एक दूसरे से इंतहाई डिफरेंट है। एक बिल्कुल स्ट्रेट चेन है, एक जो है वो ब्रांच चेन के अंदर आ जाती है। सो दैट इज़ वाई वी से दैट द ब्यूटेन and isobutane, they are isomers of each other because they have same structure formula, same molecular formula, which is C4H10, but different structure formula. As in N-butane you are forming a straight chain, whereas in isobutane you are forming a branch chain. सो दोनों का अगर आप मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें सेम है, नंबर ऑफ कार्बन आइटम दोनों तरफ 4 ही है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम भी दोनों तरफ 10 ही यूज़ हो रहे हैं। काउंट करके देख लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। सो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला बिल्कुल सेम है, सिर्फ इनके स्ट्रक्चर फार्मूला में डिफरेंस आ जाता है कि एक बिल्कुल स्ट्रेट चेन है और एक ब्रांच चेन के अंदर चली जाती है। सिर्फ ये फ़र्क है इन दोनों के अंदर कि एक एन ब्यूटेन जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट चेन है, whereas जो आपका isobutane है that is a branch chain. So that makes the difference over here that N-butane and isobutane, they both are isomers of each other because they have the same molecular formula but different structure formula. So that makes them the isomers of each other, and this whole phenomena is known as to be the isomerism. इस पूरे phenomena को जो है, the phenomena that is occurring over here is known as to be the isomerism. यानी कि अगर हम किसी कंपाउंड की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर एक कंपाउंड में नंबर ऑफ़ कार्बन आइटम्स की अरेंजमेंट को जस्ट डिफ़र कर देते हैं तो वो उसके स्ट्रक्चर फार्मूला के ऊपर अफेक्ट करती है, एंड दैट अल्टीमेटली मेक्स इट एन आइसोमर ऑफ द अदर कंपाउंड ऑफ द स्ट्रेट चेन कंपाउंड. सो दिस वाज द स्टोरी ऑफ आइसोमर ऑफ ब्यूटेन.